all of you in the video lecture of integration by parts. We have already studied u into v rule in derivative. That was derivative of u into v is equal to u as it is derivative of v plus v as it is derivative of u. Similarly, we need to know how to integrate if two functions are in the form of multiplication or product of two functions. For this, we must know the formula integral u into v dx equal to u into integral v dx minus integral d dx of u into integral of v dx, again dx. Let us see please, this is u and v, the product of two functions. Learn the formula. First term as it is, integral of second term minus integral derivative of first term integral of second term with respect to x. It means that in this integral you have to multiply the two things. One is derivative of first term and other is integration of second term. Got it? And then after multiplying these two, you have to integrate again. This is integration by parts formula. Let us see how to remember. First term as it is, integral of second term. Bolo bolo. First term as it is, integral of second term minus integral derivative of first term integral of second term bracket completed dx. This is the formula. But one thing is very important to remember and keep in your mind that and take care of that. If you observe, it is clear that you need the integral of second term v only. It means that if you compare u and v, integration of v must be easier than integration of u. It means that when you are integrating using integration by parts, you must have to rearrange it such that integration of second term must be easier with compared to first term. For this, we need to remember the rule Eilert or Elliott rule. For the basic sums, simple sums, we have to use this rule, and for so many sums we require this rule. For some examples, I and L are there. For some examples, you have to consider IL, and for some examples, you have to consider LI. It means don't confuse in these two. LIT rule for maximum sums are on LA or LT or LE, IA, IT, and IE, so that no matter of this. Now LIATE rule means LIATE rule means L for logarithmic, I for inverse, A for algebraic, T for trigonometric, and E for exponential. And dear students, keep in your mind that when you are integrating using this formula, you have to maintain this order, because as we are going from L to E, easiness of integration goes on increasing. It means that the integration of exponential is easier than trigonometric, then it is easier than algebraic, it is easier than inverse and logarithmic. Got it? So let us see the example. Sometime in question is asked integral x into, for example, x log x into x, we are considering log x into x dx. देखिए मुझे इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो देखिए पहले log x और x दोनों आए हैं. log x यानी l आया, x यानी a आया, a यानी अलजेब्रिक. l सही है क्या गलत है? l a सही है, यानी ये ऐसा लेना सही है. अगर क्वेश्चन में x पहले आता तो मैं उसको रीअरेंज करता हूं, एंड देन आफ्टर आई हैव टू इंटीग्रेट दैट. लेट अस सी प्लीज हाउ टू यूज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. Integral log x into x dx is equal to first term as it is, integral of second term minus integral derivative of first term
d dx of log x, integral of second term dx, bracket completed again dx, it is equal to log x as it is, integral of x is x square by 2 minus integral, first find out the derivative of log x, it will be 1 by x, and derivative of integral of x is x square by 2 with respect to x. We can rewrite it in the next step, that is write x square by 2 first and then log x minus, you can take 1 by 2 outside, it will be x dx. Now x square by 2 log x minus half of x square by 2 plus c. This is the final answer. You can simplify it by taking x square by 2 common, and then after we will get in bracket log x minus 1 by 2. This is the answer. In this way we can use integration by parts for the sum when you are solving and given in the form of multiplication of two things. One thing is here, if only log x is there and you have to integrate log x single at that time, let us see how to do it. Integral of log x dx. We don't have any formula of integration, means that we don't have any function whose derivative is log x. It means we don't have any easy function. That we have to find out whose derivative is log x. For this we can use integration by parts. Let us see please. When you are integrating log x dx, you can integrate by considering second term as 1. We know that integration of 1 is easier than log x and order is correct. So log x is L and it is algebraic, so you can integrate it. Let us see please. Log x first term, it is integral of second term x minus integral of 1 upon x into x dx. X cancel out. X log x minus integral of 1 dx, integral of 1 is x. X log x minus x plus c. If we can take x common, we get log x minus 1 in bracket plus c. Again we can write simply by log x upon e plus constant of integration. This is the final answer. You have to remember the formula for integration of log x, that is x in bracket log x minus 1. Then similarly जैसे मैंने log x के साथ में 1 लेके सॉल्व किया, आप लोग sin inverse x, tan inverse x, sec inverse x, ऐसे पूरे इनवर्स वाले सम्स होंगे. लॉग का कोई भी सम होगा 1 लेके आपको सॉल्व करना होगा, तब आपका आंसर आसानी से मिल सकता है. नेक्स्ट देखो, इसमें एक बात मैं आपको समझा दूंगा. यहाँ पे एक शॉर्टकट ट्रिक है. इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू कोई भी पावर रहे एक्स रेज टू एम इंटू कॉस एक्स डीएक्स है. तो एक ध्यान में रखो, अगर x का कोई भी पावर है और सामने cos रहे, sin रहे, e रेज़ टू x रहे, एक्सपोनेंशियल रहे, तब हमें एक शॉर्टकट ट्रिक है. वो शॉर्टकट ट्रिक ऐसी है, उसका नाम है फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट. ठीक है, ऐसा हमें कंटिन्यू चलना है. फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट माइनस फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट, डैश डैश डैश. कब तक चलना है? जब तक x का पावर मतलब 0 नहीं हो जाता तब तक, यानी कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा तब तक. चलो आगे चलते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? तो मैंने क्या किया है, 2 ब्रैकेट्स हमेशा लिख रहा हूं और माइनस प्लस ऐसा कंटिन्यू कर रहा हूं. तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखना है? फर्स्ट टर्म एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड टर्म का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स है. क्लियर? भूल जाओ इसको. अभी इसका डेरिवेटिव लो. इसका डेरिवेटिव फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा m इंटू एक्स रेज टू m माइनस 1. गॉट इट? अभी इसका इंटीग्रल इसमें आएगा इंटीग्रल क्या आएगा? इसे इंटीग्रल माइनस साइन का इंटीग्रल क्या आता है? माइनस प्लस कॉस एक्स आता है. करेक्ट है? हाँ. चलो भाई, मैंने क्या लिखा है? पहला एज इट इज लिखा है, दूसरे का इंटीग्रेशन लिया. अभी इसको भूल जाओ. इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल, ऐसे. तो हम इन जनरल इसको ऐसे लिखेंगे, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u एज इट इज फी 1 माइनस u डैश फी 2 plus u double dash p3 and so on. This is the formula, but keep in your mind that u must be x raised to m and v must be either exponential or cosine or sine. ऐसा है तभी हमें फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. नोट डाउन प्लीज दिस फॉर्मूला. एमसीक्यू के समय पर फिर से मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला. आगे और शॉर्टकट्स हैं. देखो, ये भी एक शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. इंटीग्रल e टू द पावर ax sin bx प्लस
सी डी एक्स। अभी इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसका शॉर्टकट ध्यान में रखो, ये है ई रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट कंप्लीटेड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एनी कांस्टेंट यू कैन टेक, अगर यहाँ पे कैपिटल सी है तो आप स्मॉल सी ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन में उनका जो कांस्टेंट है उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। ये है शॉर्टकट फार्मूला। वैसे कॉस का भी फार्मूला बनता है, ई रेज टू एक्स कॉस ऑफ बी एक्स प्लस सी। दोनों में क्या फर्क है, रिलेटिव हम ध्यान में रखेंगे। ई रेज टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी ब्रैकेट कंप्लीटेड प्लस डी। अब देखिए एक सम भी सॉल्व करते हैं शॉर्टकट से है। चलो भाई अगर क्वेश्चन ऐसा है, एग्जांपल ई रेज इंटीग्रल ई रेज टू 3x एंड मान लीजिएगा यहाँ पे है साइन 4x बस 5 करते हैं। चलो ये सम है, मुझे सॉल्व करना है। इसका मेथड तो है बाय पार्ट से करना है, लेकिन मुझे एमसीक्यू के लिए इसका यूज होता है शॉर्टकट टेक्निक, ये ट्रिक मुझे यूज करनी है। तो देखो कितना इजी है, इसको लिखो भाई, इसको लिखा है ना। हाँ, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है ना, क्या है कोएफिशिएंट 3, उसका स्क्वायर बताओ 9, क्या बात है, वेरी गुड। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है एक्स का कोएफिशिएंट 4, इसका स्क्वायर बताओ 16, करेक्ट, इतना समझा। हाँ, अब क्या करो, ये पावर लो 3, हाँ, और इसको सामने लिखो साइन 4x प्लस 5। साइन आया तो माइनस साइन देना है, कॉस आया तो प्लस साइन देना है, लेकिन मेरा साइन है माइनस साइन दिया। इधर तो कोएफिशिएंट लो 4 और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस 4x प्लस 5। देखिए आंसर हो गया कि नहीं। हाँ, तो अब बताओ मुझे फास्ट में ई रेज टू एक्स साइन एक्स का आंसर क्या होगा, क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, इधर तो कोएफिशिएंट 1, इधर तो कोएफिशिएंट 1 प्लस 1 2 होगा, तो ई रेज टू एक्स बाय 2 आया। हाँ, कोएफिशिएंट नहीं, इधर कुछ नहीं आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखो कितना सिंपल फॉर्मूला आपको याद करना है, ध्यान में रखना है ना। ई रेज टू एक्स साइन एक्स है, ई रेज टू एक्स बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बस। तो ई रेज टू एक्स कॉस एक्स का मतलब फास्ट बताओ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बताओ। वेरी गुड, ई रेज टू एक्स बाय 2, हाँ क्या आएगा cos x प्लस sin x और sin x प्लस cos x। देखो कितना सिंपल है ये। ऐसा मतलब अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करोगे बुक से, तो आपको आपका ये शॉर्टकट ट्रिक ध्यान में रहेगा, लर्न हो जाएगा, यानी एग्जाम में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, समझा। आगे बढ़ते हैं दूसरा ट्रिक। अभी इसको मैं मोल्ड करता हूँ, थोड़ा चेंज करता हूँ। देखो अगर मैंने चेंज किया तो कैसे करूंगा, 1 मिनट में दिखाता हूँ आपको। यही फॉर्मूला अलग तरीके से हम कैसे लिखते हैं, मैं सिर्फ साइन का दिखाऊंगा, आप कॉस के बारे में सोच सकते हैं। देखो यही फॉर्मूला मैं चेंज करके लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। चलो भाई मैंने रूट डाला है यहाँ पे, ये तो आप समझ सकते हैं मैंने रूट डाला है, मतलब एक रूट कहा गया अंदर लेके जा रहा हूं इसको, एक रूट को मैं अंदर लेके जा रहा हूं। चलो साइन बी एक्स प्लस सी को लिखा मैंने, रूट को अंदर लिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंदर, राइट। देन प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी को लिखा, और बी के भी नीचे वही आ जाएगा जो हमने अंदर भेजा है, राइट, प्लस डी। देखिए कोई भी एक ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिएगा, यहाँ पे एक एंगल अल्फा मानो, अल्फा के सामने का वाला जो साइड है इसको बी कंसीडर करो, इसको ये कंसीडर करो। पाइथागोरस थ्योरम से ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपको यहाँ पे tan अल्फा मिलेगा बी बाई, इतना तो समझ में आया आपको, tan अल्फा बी बाई मिल रहा है, क्लियर। लेकिन tan अल्फा हम फाइनली यूज करेंगे, तब तक मुझे बताओ व्हाट इज ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट इज ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है बोलो, ए अपॉन यानी एडिशन से यानी कॉस अल्फा है, तो बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, हाँ साइन अल्फा है, तो ये कॉस अल्फा हो गया, बराबर, और ये क्या हो गया, साइन अल्फा हो गया। इट इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस सी कॉस अल्फा प्लस कॉस बी एक्स प्लस सी। एक मिनट, यहाँ पे माइनस का साइन लग रहा है मुझे, हाँ जी माइनस का ही साइन है, कॉस बी एक्स प्लस सी साइन अल्फा ब्रैकेट कंप्लीटेड प्लस सी। तो ये क्या आ रहा है, ई रेज टू एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ऑफ बी एक्स प्लस सी प्लस अल्फा, लेकिन अल्फा क्या है, tan इनवर्स बी बाई ए है, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है। देखो ये इतना बड़ा एंगल हो रहा है प्लस सी, यानी फॉर्मूला शॉर्ट में आया है में। अगर यही फॉर्मूला मैंने कॉस का लिखा तो क्या चेंज होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा बोलो, कुछ नहीं होगा, क्या चेंज होगा, यहाँ पे सिर्फ कॉस होगा, माइनस का साइन वैसे की वैसे रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कॉस होगा, वो भी आप नोट डाउन करो। समझ में आई ये फॉर्मूला कैसा है, ध्यान में रखो। अगर मैंने सिंपल क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा तो इस फॉर्मूला में
ये फार्मूला का यूज करके आप लोग मुझे आंसर बता सकते हैं। चलो बताइए इसका आंसर जल्दी फास्ट बताओ। हाँ चलो, इंटीग्रल ई रेज टू एक्स साइन एक्स है। हाँ इसको कैसे बताएंगे? हाँ ई रेज टू एक्स अपॉन रूट टू, करेक्ट है, रूट टू लिया। हाँ साइन एज इट इज, करेक्ट। बी एक्स प्लस सी, क्या है? बी एक्स प्लस सी एक्स है माइनस tan इनवर्स b by a ने 1, tan इनवर्स क्या होता है? पाई बाय 4 होता है। देखो ये आंसर है, क्लियर? इंटीग्रल ई रेज टू साइन एक्स का शॉर्ट में आंसर है। ये अगर ऑप्शन में है, रूट टू अगर है तो आपको समझ लेना है और ये आप ऐसे करना है। यहाँ पे समझ गए? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंटीग्रल सेक क्यूब एक्स डीएक्स, इसके लिए क्या शॉर्टकट है? पता है आपको? अरे बहुत इजी है, हाफ करने का। हाफ करने का, डेरी ऑफ सेक प्लस इंटी ऑफ सेक। वाओ देखो कितना शॉर्ट है, किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा ये फॉर्मूला है, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। हाफ डेरी ऑफ सेक प्लस इंटी ऑफ सेक। डेरी ऑफ सेक बोलो क्या है? ध्यान में रखने के लिए तो इजी है। हाँ डेरी क्या है? डेरी क्या होता है? सेक का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है? सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x। वाह वेरी गुड। हाँ इंटी क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक का इंटीग्रल log ऑफ मोड ऑफ सेक x प्लस tan x मॉड कॉम्प्लेट प्लस c। देखिए ध्यान में रखने के लिए इजी है क्या? वैसे कोसेक क्यूब का बताओ मुझे। हाँ कोसेक क्यूब x dx इंटीग्रल इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस कोसेक x cot x, वही डेरी ऑफ कोसेक x माइनस कोसेक x cot x, देन प्लस log ऑफ कोसेक x माइनस cot x और log ऑफ tan x by 2 मॉड कंप्लीटेड ब्रैकेट कंप्लीटेड प्लस सी। एक हो गया। और एक सबको मतलब पसंद जो फॉर्मूला है वो कैसा है? देखो हमारा छोटू ई रेज टू एक्स इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यानी क्वेश्चन में फंक्शन प्लस डेरिवेटिव आ जाता है ई रेज टू एक्स के साथ में। अगर ऐसा आया है तो हमारा आंसर होता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल e raised to x in bracket 1 upon x plus 1 upon minus 1 upon x square dx। देखिए भाई ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या हो गया? e raised to x 1 upon x plus। क्या बात है, वेरी गुड। बोलो e raised to x tan x plus x square x। बोलो जल्दी आंसर बताओ। वेरी गुड, e raised to x tan x। ठीक है, यानी हमें क्या करना है? ये मिक्स करके देंगे वो लोग। हमें क्या करना है? उसको ब्रेकअप करना है, स्प्लिट अप करना है दो पार्ट्स में, ताकि फर्स्ट फंक्शन आए और सेकंड डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव को डिलीट करना है और e raised to x tan x हमारा आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझा? हाँ ये एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर, और एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर इंटीग्रल अंडर रूट a square minus x square dx is equal to x by 2 into root of a square minus x square plus x square by 2 into sin inverse x by a plus c। देखो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको प्रूव करने के लिए हम वन लेके बाय पार्ट्स करेंगे। और एक है इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx is equal to x by 2 into root of x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर minus a स्क्वायर by 2 log of mod of x plus under root x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर mod कंप्लीटेड प्लस c। और एक है प्लस डाल के, अगर हमने प्लस डाला तो क्या होगा? इधर भी प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा और इधर भी प्लस होगा। ऐसा चेंज हो सकता है। ये तीन फॉर्मूले भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से प्रूव किए हुए हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके ऊपर भी यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन आ सकता है और आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वेरी इजी। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मैंने आपको सब बता दिए हैं। ठीक है, समझ में आया? और एक बात इंपॉर्टेंट है, कौन सी? कभी कभी इंटीग्रेशन में क्या होता है बताया गया, लॉग के अंदर ऐसी चीजें साइन एक्स आ जाता है तो हम देखते हैं ना लॉग के अंदर साइन एक्स है। अभी क्या करें? अभी क्या करें? लॉग के अंदर साइन। हाँ एक मिनट, साइन के अंदर लॉग लेते हैं। साइन के अंदर लॉग आए तो साइन के अंदर लॉग आए तो क्या करेंगे? अरे ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ध्यान में रखो, यहाँ पे मुझे लॉग एक्स को क्या पुट करना है? टी पुट करना है। ठीक है, पुट करने के बाद आप लोग सोचते रहेंगे सर आपने लॉग एक्स को टी पुट किया, 1 upon x तो नहीं है, लेकिन आपने पुट कैसे किया? भाई मुझे लॉग का डेफिनेशन पता है, जो आपको भी पता है, लेकिन भूल गए थे। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन है? ई। टी क्या बोलता है? ई को। टी क्या बोलते हैं? ई को आजा मेरे नीचे बैठ जा, मैं ऊपर चला जाता तू नीचे आ जा। देखिए कैसे है, x इज इक्वल टू ई रेज़ टू टी। टी बोलते हैं को आजा आजा, टी बोलते हैं मेरे नीचे बैठ जा, तो टी के नीचे आके बैठा, टी ऊपर है और x का वैल्यू मिल गया, लॉग रिमूव हो गया, x इक्वल टू ई रेज़ टू टी आया। तो dx क्या आता है? ई रेज़ टू टी dt आता है। तो आगे की स्टेप कैसे मिलेगी मुझे? इंटीग्रल ऑफ
साइन टी हो गया, ईरिश टू टी भी है, साइन टी हो गया, ईरिश टू टी के साथ में इसका शॉर्टकट मैंने आपको बताया ईरिश टू टी ब्रैकेट साइन टी माइनस कॉस टी ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी एंड ईरिश टू टी का वैल्यू है x, यहाँ पे लिखेंगे साइन के ब्रैकेट में log x आ जाएगा माइनस कॉस के ब्रैकेट में भी log x आ जाएगा ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी, आंसर हो गया। समझ में? चलो कुछ एमसीक्यू भी लेते हैं इसके ऊपर के, समझ में? हाँ, अब चलो ये सॉल्व करो, देखते कौन सॉल्व करता है, मैं या आप, जल्दी कौन सॉल्व करता है। इसका ट्रिक मैंने आगे आपको बताया था, e raised to 5x cos 4x dx इक्वल टू a into e raised to x ऐसा है। तो इसका आंसर देखिए, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है, मैंने बताया था आपको, e raised to 5x को ऐसे लिखना, नीचे इसका स्क्वायर करना, ये तो आता है 25, इसका स्क्वायर आता है 16, ठीक है ना, बराबर। और ब्रैकेट में क्या आता है 5 इधर का 5 लेना, cos 4x, करेक्ट, राइट, हाँ, प्लस 4 sin 4x, एक cos वाला फॉर्मूला है, प्लस c। अभी ये हमारा आंसर आया, उनका आंसर में ना sin 4x के पास कुछ नहीं है, तो 4 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो भाई e raised to 5x हो गया, मैंने 4 को कॉमन निकाला है, डिनोमिनेटर में क्या है 41 है, 4 को कॉमन निकाला तो यहाँ पे आ रहा है 5/4 cos 4x plus sin 4x। If we compare this answer with the given answer, sin 4x है क्या, हाँ sin 4x है, cos 4x है, 5/4 भी है, चलो भाई e raised to 5x भी है, हाँ तो ये हमारा 4/41 एक ही जगह होना चाहिए, 4/41 ये आंसर क्लियर, नेक्स्ट सम। चलो बेटा, अभी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, तो इंटीग्रल ऑफ f of x equal to 3 raised to x cos x is, तो आपने इसको देखा और सोचा सर ये इसका तो शॉर्टकट आपने बताया नहीं है, हाँ तो मैं बोल रहा हूँ मैंने तो अभी बताया है, मैंने बोला सर नहीं आपने तो ये का बताया, यहाँ तो 3 का है, हाँ जी भाई ये का और 3 का थोड़ा सेम ही होता है, तो मैं को बताता हूँ कैसे चेंज करना है ई में इसको। इंटीग्रल ऑफ 3 raised to x cos x पूछा है उन्होंने, राइट। कभी कभी इंटीग्रल की जगह पे प्रिमिटिव वर्ड आता है, कभी कभी एंटी डेरिवेटिव वर्ड आ सकता है ना, हाँ 3 raised to x cos x को आपको पता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, कोई भी मैंगो इक्वल टू ई raised to log मैंगो होता है ना, ये फॉर्मूला है, अम्बा इक्वल टू ई raised to log अम्बा, कोई भी नंबर x रहा हम e raised to log x लिख सकते हैं। वैसे 3 raised to x को मैं कैसे लिखता हूं, देखिए e raised to log 3 raised to x cos x dx, करेक्ट, यानी मैं इसको लिखूंगा लॉज ऑफ इंडाइसेस से e raised to log 3 times x, log 3 times x cos x dx। चलो अभी हो गया हमारा फॉर्मूला, ये मैंने क्या बोला था e है, e तो एज इट इज लिखो, e को e raised to log 3x एज इट इज आया, क्लियर। हाँ, बाद में मैंने क्या बोला इसके नीचे क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर है log 3 का स्क्वायर और बी स्क्वायर है 1, ब्रैकेट के अंदर क्या बोला था मैंने cos का सम है, क्या बोला था log 3 लिखो पहले, बाद में क्या लिखना cos x लिखना है, बाद में प्लस कोएफिशिएंट 1 एंड sin x प्लस c। चलो कंपेयर करो, e raised to log 3x यानी 3 raised to x है 3 raised to x किधर, हाँ सब जगह पे है, नीचे 1 प्लस log 3 स्क्वायर दो जगह पे है, ये कट हो गए दो ना, और अंदर log 3 के साथ में cos है, log 3 के साथ में cos है और sin आके रखे हैं, ऑप्शन सी है, क्लियर। हाँ देखो ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट सम है, नेक्स्ट। हाँ देखो ये सम नंबर 3, मैंने देखो क्या दिया है, log के हमने 1 माइनस रूट एक्स dx दिया है, ये सम है और ऑप्शन दिए हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है कैसे करना है, log का सम आया तो इंटू 1 करके सॉल्व करना है। देखिए इंटीग्रल ऑफ log ऑफ 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 dx ऐसा क्वेश्चन है, मतलब हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे 1 लेके, अभी बाय पार्ट से करेंगे, तो log ऑफ 1 माइनस रूट एक्स एज इट इज हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1 x हो गया, ठीक है, x log ऑफ 1 माइनस रूट एक्स कितने ऑप्शन में है, x log ऑफ 1 माइनस रूट एक्स, x log ऑफ 1 माइनस रूट एक्स, x log ऑफ 1 माइनस रूट, अरे सब ऑप्शन है, इतने से काम नहीं होगा, माइनस, हाँ चलो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 माइनस रूट एक्स log का हो गया, इसका चेन रूल से माइनस, बोलो क्या होगा 2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग है ना, हाँ क्या है log ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का 1 अपॉन 1 माइनस रूट एक्स और 1 माइनस रूट एक्स का माइनस रूट एक्स का, सॉरी माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स होगा, और इंटीग्रल लेना है 1 का, वो क्या आएगा x dx। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x log ऑफ 1 माइनस रूट एक्स, ठीक है, माइनस
1/2 को बाहर निकालते हैं, ये हो गया x रूट x हो गया, एक रूट कैंसिल होता है और 1 माइनस रूट x dx हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं x इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करके, पुट x इक्वल टू टी स्क्वायर dx होगा 2t dt। देन आफ्टर सॉल्विंग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको सिंपल, एंड देन यू विल गेट योर आंसर, दैट विल बी आई थिंक ऑप्शन बी। यू कैन चेक, नहीं आया तो नीचे कमेंट में डाल दो, मैं आपको सॉल्व करके देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये सम एक दिन से लॉग का सम है ना, इधर भी इंटू 1 से करेंगे। जब हम इंटू 1 से करेंगे तो एक टर्म एज इट इज एंड एक्स आ जाएगा, एक्स इंटू ए एज इट इज, यानी एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, लॉग हो रहा है। कितने ऑप्शन में लॉग वाला आंसर दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है, एक ही ऑप्शन में, बस एक हो गया। तो अगर ये नहीं आता और एक जगह पे दूसरा एफ ऑफ एक्स का ऑप्शन आता तो हमें आगे बढ़ना है। तो थोड़ा आगे मैं बताता हूँ, फिर आप आगे कर सकते हैं अगर सम चेंज हो गया तो। इस सम के लिए तो हो गया हमारा काम, है ना। तो चलो पहला टर्म क्या आएगा, 1 का इंटीग्रल एक्स हो गया, लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स हो गए। बाद में हम इंटीग्रेशन जब माइनस करके इंटीग्रल लेंगे ना, उसमें फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है, तो ये आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू माइनस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स होगा। ये डेरिवेटिव हो गया और इंटीग्रल क्या आएगा x। जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, मैं ये टर्म नहीं लिखूंगा, आप उसको आगे लेके जाते हैं क्योंकि ये तो आपको पता चला है। माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे इसका तो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आ जाएगा और नीचे आएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स आएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। इट इज 1 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बाद में ये माइनस का साइन एंड देन इंटीग्रल ए एक्स हो गया, ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये आएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 2 एक मिनट, हाँ, और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे बोलो भाई ये 2 है, ए प्लस बी ए माइनस बी यानी 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे 1 1 कैंसिल होगा और आगे देखो इधर ए एक्स एक्स कैंसिल होगा, यहाँ पे माइनस ए एक्स इस एक्स के साथ में कैंसिल होगा, 2x है तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा और ऊपर 2 माइनस 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, करेक्ट है। 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये चेंज करके प्लस करके वैसे भी आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। हाँ, और एक कुछ तो हमारा बाकी रह गया है यहाँ पे लिखना। हाँ, जब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था ना, इसका 2 ये तो इसका हुआ था, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाकी था, ये यहाँ पे आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 है। आप लोग क्या कर सकते हो, इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं। एक आएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स होगा और यहाँ पे कट हो जाएगा एक जगह पे, ठीक है। तब आपका आंसर मिल सकता है जब नया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लीजिए ये सब, इसमें ना क्या करो, सेक इनवर्स रूट एक्स, हर ऑप्शन में आपको 3 ऑप्शन में तो आपको एक्स दिख रहा है, इधर इधर इधर, बी ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये 3 ऑप्शन में एक्स दिख रहा है, ये तीनों में से कोई एक्स को कट कर देना इंटू 1 dx। चलो बाय पार्ट्स करना है तो ये ऑर्डर सही है, सेक इनवर्स रूट एक्स एज इट इज करेक्ट, इंटीग्रल ऑफ 1 एक्स है तो मैं पीछे लिखता हूँ, ये सेक इनवर्स रूट एक्स 3 ऑप्शन में है, अभी अभी कौन सा है उसमें से चेक करना है। माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स रूट एक्स क्या है, 1 अपॉन बोलो रूट एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स माइनस 1, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स रूट एक्स का पहला पार्ट। सेक इनवर्स का ये हो गया, अब रूट एक्स का क्या आ रहा है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ रहा है और बाद में 1 का क्या आ रहा है, एक्स। क्लियर हो गया। हाँ, अभी क्या करता है, ये रूट एक्स और एक्स के साथ में कट हो गया, ये हो गया एक्स सेक इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रल 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस 1 हो गया। तो ये 2 को भी अंदर लेके जाते हैं, चलो 1/2 रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का इंटीग्रल क्या आता है, एक्स सेक इनवर्स रूट एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी, हो गया आंसर। ये देखो कौन सा है, ऑप्शन सी है, ओके यस।
तो ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आया तो आप नीचे कमेंट में लिख दो, मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ। आपका नंबर तो मैं पर्सनल भी आपको भेज देता हूँ आपके व्हाट्सएप पर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और देखो, बार बार बता रहा हूँ आपको सब्सक्राइब करना है, यानी अगर आपने सब्सक्राइब किया, मैक्सिमम सब्सक्राइब होने के बाद मैं आपको लाइव पढ़ा सकता हूँ, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।